المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ لدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل له لکل شیء قدرا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس جلیل القدر امام بارگاہ میں نوکری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ بولتا جائیے گا تاکہ تنہائی کا احساس نہ ہو۔ بہت ہی جلدی میں ایک چھوٹا سا پیغام دے کہ طالب دعا زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، بت پرستی کا زور تھا۔ کوئی ڈوبتے ہوئے سورج کو پوجتا تھا، کوئی ابھرتے ہوئے چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی کنکر کو شنکر مانتا تھا، کوئی پتھر کو حی القیوم سمجھ کر اس کے آگے ماتھا ٹیکتا تھا۔ اس زمانہ جاہلیت کے دور میں خدا نے رحیم ہو کے، کریم ہو کے، خالق ہو کے، مالک ہو کے، کل شیء قدیر ہو کے، سب کا حقیقی خدا ہو کے، سب کا مسیحا ہو کے، سب کا پیشوا ہو کے، سب کا پالنے والا ہو کے، سب کا پروردگار ہو کے، خدا نے اپنے حبیب کو، حبیب کبریا کو، وجہ تخلیق کائنات کو، دو جہانوں کے سردار کو، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ خداوند قدوس نے اپنے ہی محبوب کو اس کائنات میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ پوری توجہ کا طلبگار ہوں۔ اللہ کے نبی کے ذمہ میں ہے کہ اللہ کے نبی تبلیغ کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے۔ تبلیغ کے سلسلے میں اسلام کی سب سے پہلی دعوت کے بعد اللہ کے نبی نکلے گھر سے باہر، تو بڑے بڑے بندے آج کہتے ہیں جی ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ توجہ ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، انہیں بندوں کے ہر امامے کے اوپر قرآن رکھ کے پوچھو بتاؤ اسلام کی سب سے پہلی دعوت کہاں پہ ہوگی؟ ہاتھ نہیں ہو گیا۔ ایک طرف بندے یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو طالب کافر تھے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ جو بندے یہ کہتے ہیں نا جی حضرت ابو طالب کافر تھے، انہیں بندوں کے ہر امامے کے اوپر قرآن رکھ کے پوچھو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، انہیں بندوں سے پوچھا جائے بتاؤ اسلام کی سب سے پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی؟ وہ گھبرائے گا، شرمائے گا، پھر چپ ہو جائے گا۔ آیت طریق سے پوچھتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی؟ طریق بتاتی ہے اسلام کی سب سے پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اب طریق سے پوچھو حضرت ابو طالب کا گھر کدھر ہے؟ طریق بتاتی ہے حضرت ابو طالب کا گھر بھی مکے میں ہے۔ اب طریق سے پوچھو خدا کا اپنا گھر کدھر ہے؟ طریق بتاتی ہے خدا کا اپنا گھر بھی مکے میں موجود ہے۔ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا بات اللہ کی، توحید اللہ کی، رسول اللہ کا، پیغمبر اللہ کا، محمد اللہ کا، بات اللہ کی ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی جبکہ اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں موجود ہے؟ گھر بھی کوئی چھوٹا نہیں، 2 نبیوں سے مزدوری کروا کر اس گھر کو بنایا ہے، تو بات اللہ کی ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ تو اس وقت مولوی کہتا ہے جی اس وقت زمانہ جاہلیت کا دور تھا، بت پرستی کا زور تھا، اس وقت اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے، ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے۔ اور دشمن ابو طالب تمہیں شرم نہیں آتی؟ یاد رکھنا رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہ تھے۔ سرائکی کا ایک شعر ہے، جیشان عمران دی نہیں سمجھی او دی سنجو عقل مسافر ہائی، انصاف دی اس پہ مالی تے اس فلسفہ سوچ سے وافر ہائی، جن کرشان میار محمد ہائی، بس تو دوار کو اتنا ڈس تین جالی چمکے حاجی ہیں جس جا کے پہلے کافر ہے۔ اللہ کے نبی دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے۔ کافرہ ماؤں کے کہنے پہ کافر بچوں نے رسول کو پتھر مارے، زخمی ہو کے رسول واپس آئے۔ سرکار ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کا لہو دیکھا، برداشت نہ ہوا، محمد مصطفیٰ کو سامنے کیا، محمد کا لہو صاف کیا،
आसमान की जानब देखा, सब्र किया। दीन इस्लाम के दिन, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए दूसरे रोज अल्लाह के नबी घर से बाहर निकले। काफिर बच्चों ने रसूल को पत्थर मारे, रसूल जख्मी होकर वापस आए। अब जब सरकार अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का लहू देखा ना, तो सरकार अबू तालिब से बर्दाश्त न हुआ। सरकार अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा और वहां पर आए जहां पर खुदा का पैकर अली बैठा था। अली की तरफ इशारा करके कहते, या अली, अगर इसमें जख्मी होना है तो फिर आपके बिस्तर बदलने का फायदा क्या? अली अलैहिस्सलाम खड़े होकर मोहम्मद मुस्तफ़ा का लहू साफ किया और फरमाया, मेरे बाबा, आज के बाद मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा जख्मी ना होंगे। अब हालत क्या है? दीन इस्लाम के तीसरे रोज तबलीग के लिए जब घर से बाहर निकले ना, तो हालत क्या है, मंजर क्या है? आगे आगे रिसालत, पीछे पीछे इमामत, आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, पीछे पीछे अली मुर्तज़ा। बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देने के लिए आगे आगे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे पीछे थे अली वलीउल। अच्छा, हालत क्या है, मंजर क्या है? अली अलैहिस्सलाम के हाथों में एक मुट्ठी खुरमे थे, खजूर है। अली अलैहिस्सलाम एक खजूर खाते हैं, घुटनी संभाल कर रख लेते हैं, दूसरी खजूर खाते हैं, घुटनी संभाल कर रख लेते हैं। ये कोई खेल नहीं हो रहा, हिफाजत मोहम्मद का असला इकट्ठा हो रहा है। तारीख में है कि दूर से देखा काफिरा माओ ने अपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहती, वो देखो यतीम अब्दुल्ला आ रहा है, उठाओ पत्थर, मारो यतीम अब्दुल्ला को। तारीख में अब इन बच्चों के हाथों में पत्थरों का आना था। अली ने बचपन की उंगली से इशारा किया, खबरदार, एक पत्थर भी मेरे मोहम्मद के वजूद में ना आए। काफिर माए अपने अपने बच्चों को भटकाने लेके गड़गड़ाने लगे, तुम डरते किस बात पे हो? तुम बहुत ज्यादा, अली अकेला, चढ़ो अपनी अपनी छतों के ऊपर, मारो यतीम अब्दुल्ला को पत्थर। तारीख में अब इन बच्चों के हाथों में पत्थरों का आना था। अली अलैहिस्सलाम ने वही खजूर की गुठलियां निकाली, जिसके सर पे मारी इसका सर गया, जिसके कंधे पे मारी इसका कंधा गया, जिसके सीने पे मारी इसका सीना गया। आज मौलवी कहता है, मैं नहीं मानता, एक खजूर की गुठनी में इतनी ताकत कहां से आ गई? वो किसी को मार दे या जख्मी कर दे। और मौलवी, तूने कुरान पढ़ा है पर समझा नहीं। अल्लाह जो कुरान मजीद में फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिस्सहाबिल फील, और तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? मुझे सोच के बताओ, अगर अबाबील की चोट से निकली हुई छोटी सी कंकर अबरहा के हाथी मार सकती है, अली के हाथों से निकली खजूर की गुठनी काफिर बच्चे नहीं मार। फिक्रा मेरा आखिरी फजाइल का, मौलवी अगर रसूल खुदा की इसी हदीस को समझ लेता ना, तो आज उसे सरकार अबू तालिब की तारीफ ढूंढने के लिए, भाई नवीद बैठ जाओ यार, आज उसे सरकार अबू तालिब की तारीफ ढूंढने के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। बुखारी शरीफ में लिखा है कि दीन का तालिब इल्म जब दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। क्या मतलब? कि दीन का तालिब इल्म, दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। जिसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाए ना, उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसकी जूती साफ करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसका अदब करे उसे आलिम दीन कहते हैं। आलिम दीन जिसका हया करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिसकी इज्जत करे उसे रावी कहते हैं। रावी जिसका हया करे उसे तबा ताबीन कहते हैं। तबा ताबीन जिसकी इज्जत करे उसे तवाबी कहते हैं। तवाबी जिसकी तज़ीम के लिए खड़ा हो जाए उसे सुहाबी कहते हैं। सुहाबी जिसका हया करे उसे नबी कहते हैं। नबी जिसकी इज्जत करे उसे रसूल कहते हैं। रसूल जिसका हया करे उसे पैगंबर कहते हैं। इसी जुमले में पता चल जाएगा कौन बंदा इस मजलिस में बैठ के अपने घर की सोचों में गुम है और कौन बंदा मेरे साथ मेराज का सफर कर रहा है। हजरत आदम से लेकर ईसा तक कुल के कुल अंबिया, कुल के कुल रसूल, कुल के कुल पैगंबर जिसको झुक झुक कर सजदे करे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी तज़ीम के लिए खड़ा हो जाए उसे ज़हरा कहते हैं। ज़हरा जिसकी जूती साफ करे उसे अली कहते हैं। आदम से लेकर मोहम्मद तक, अली से लेकर महदी तक, कुल के कुल अंबिया, सारे के सारे नबी, सारे के सारे पैगंबर, सारे के सारे इमाम जिसको झुक झुक कर सजदे करे ना उसे अबू तालिब कहते हैं।
अज़ादारों, रोने की बात फकत यही है, जिस अबू तालिब का इतना मकाम है ना, उसे आज लोगों ने काफिर कहा। इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा। आज भी करबला है। मुझे मिंबर की अजमत की कसम है, इसी अबू तालिब के जो सैयद बैठे, मुझे माफ करना, शाम के दरबार में अबू सफियान का निजस पोता तख्त पर बैठकर शराब पीता रहा। अबू तालिब की शरीफ पोतियां चुपचाप पाबंद होकर कैद में खड़ी रही। मंजर दिल में बन गया तो दुआ मेरे लिए मसल्ले पर भी करोगे। अज़ादारों, हालत क्या है, मंजर क्या है। इधर तख्ते यजीद है, एक रस्सी है, 18 गर्दनें हैं। हालत क्या है, मंजर क्या है। एक रस्सी है, 18 गर्दनें हैं। इधर तख्ते यजीद है। तख्ते यजीद में सबसे पहले बीबी फिजा है। बीबी फिजा के बाद अली की आलिया बेटी है। बीबी आलिया के बाद बीबी कलसूम है। बीबी कलसूम के बाद लाहौर वाली बीबी मलिका है। अज़ादारों, एक रस्सी है, 18 गर्दनें हैं। हालत क्या है, मंजर क्या है। सबसे आखिर में हुसैन की यतीमा बेटी है। हालत क्या है, गले में तंग रस्सी है, रुखसार नीले हैं, कानों से खून रवा है। हुसैन की सकीना कभी जख्मी पांव उठाती है, कभी रखती है, कभी उठाती है, कभी रखती है। 7 घंटे बाद सफीर रूम अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कहता हूँ, यजीद, जुल्म की भी हद होती है। मैं तुझसे ये नहीं पूछता इनका कसूर क्या है, मैं तुझसे ये भी नहीं पूछता इनका जुर्म क्या है, मगर यजीद इतना याद रखना, और पिछले 7 घंटों से मैं अपनी कुर्सी पे बैठ कर थक गया हूँ और एक मंजर देख रहा हूँ। वो जो सबसे आखिर में छोटी बच्ची है ना, और जिसके गले में तंग रस्सी है, और जिसके रुखसार नीले हैं, जिसके कानों से खून रवा है, उस बच्ची ने कई मर्तबा बेहोश होकर गिरने की कोशिश की थी, मगर तंगर मातम मौला सज्जाद रो के फरमाते, और कमीने मेरी बहन के गले की रस्सी को ढीली कर, नहीं तो ये मर जाएगी। और जब सैयद बैठे, मुझे माफ करना, मलाउन कहता बच्ची को मेरे सामने पेश किया जाए। अज़ादारों, हुसैन की थकी हुई बेटी तख्ते यजीद के सामने आई। हालत क्या है, मंजर क्या है। गले में तंग रस्सी है, रुखसार नीले हैं, कानों से खून रवा है। मलाउन पूछता, बच्ची तेरा नाम क्या है। मैं मर जाता, जुमला मैं ना पढ़ता। मलाउन पूछता, बच्ची तेरा नाम क्या है। अज़ादारों, सैयदा के लब हिलते हैं पर आवाज नहीं आती। फिर पूछता है, बच्ची तेरा नाम क्या है। अज़ादारों, सैयदा के लब हिलते हैं पर आवाज नहीं आती। फिर पूछता है, बच्ची तेरा नाम क्या है। सैयदा के लब हिलते हैं पर आवाज नहीं आती। मेरी तरफ देखिएगा, पता आवाज क्यों नहीं आती, क्योंकि इस कदर हुसैन की यतीमा के इतनी तंग रस्सी थी, बीबी के गले में इतनी तंग रस्सी थी, सांस पे टूट के निकलता था, आवाज निकलना बड़ी ही मुश्किल थी। इसने शिमर की तरफ इशारा किया, इशारा करके कहता हूँ, शिमर तू देख रहा है ना, ये बच्ची भरे दरबार में तेरे अमीर की तौहीन कर रही है। इस कमीने ने लोहे का तादिया न उठाया, घुमाता सैयदा के करीब आया। बीबी का बदन रस्सियों के अंदर से कांपना शुरू हुआ। मौला सज्जाद रो के फरमाते, और मेरी बहन को ना मारना, मेरी बहन को ना मारना। मौला सज्जाद रो के फरमाते, और कमीने मेरी बहन तेरी बात का जवाब देने की कोशिश तो करती है, मगर तंग रस्सी की वजह से उसका सांस भी टूट के निकलता है, आवाज निकलना बड़ी मुश्किल।